So, Mr. Anand, first of all, I would like to congratulate you. And will you like to please tell me about the Geon? As per our knowledge, that it's a rebranding. So, can you please that which are the projects you are and which are the sectors in which you are dealing, and you are all the projects about the projects and in various states where you are going to set up about your technology, about your projects. Please tell us. Thank you so much, and thank you for introducing Geon to everybody. So, Batrix, as you know, was an earlier brand, and we have now moved and transitioned to the brand Geon. We continue to have the products which we were already doing in Batrix, but also will look at a larger green energy space. So, to give you a perspective, today in India, with the leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, there's a whole green evolution, and we want to be energy independent as a country. So energy independence, when we say we need to make significant investments in the green energy sector. Green energy sector में सोलर है, विंड है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हम कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी का, बट इसके साथ एनर्जी का जो मैनेजमेंट है, एनर्जी स्टोरेज है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी हमको एक तौर से देखना है. And that is the purpose, one of the main purpose of Geon. That's why we say Geon Green Energy On. यानी green energy के जितने भी elements हैं, end to end, which means battery, storage solutions, as well as complete integration, DC to AC integration, Geon करेंगे. तो आप जैसे हमारे बूथ में हमने पूरा बताया है, ये शो में कंप्लीट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस है. इसके साथ हम लोग डीसी साइड और एसी साइड दोनों करेंगे. इसमें आप ग्रिड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, जनरेटर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, सोलर के साथ, विंड के साथ, हाइब्रिड सिस्टम में इंटीग्रेट करके कंप्लीट अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. सो अब जो हमारा फोकस है EVs में तो रहेगा ही, जो हम लास्ट 6 साल से कर रहे हैं, but also green energy complete end-to-end solutions. So, Mr. Anand, would you like to focus that you are talking about that you can talk about the grid and all that? In case if you have to suppose to supply the power through your green energy concept to some like bigger cities or a like bigger town, how you are going to manage that? Yeah, so आप जैसे देखोगे आज इंडिया में इतने सारे टेंडर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे सेकी है, GUVNL, SUVNL, ऐसे बहुत टेंडर्स आ रहे हैं, बोथ सोलर के एज वेल एज BESS सिस्टम्स के. ये जितने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, दे आर बिडिंग फॉर द टेंडर्स. नाउ वहाँ पे जो और आपके दूसरे होंगे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं पूरे इंडिया में. ये लोग वेदर ग्रिड इंटीग्रेटेड, ये लोग सिर्फ सोलर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, विंड प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, इनको पूरा बैटरी सिस्टम लगेगा. तो ये बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होगी कोई और पॉइंट पे और थ्रू द ग्रिड आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी. बेसिकली जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, आप सोचिए सोलर जो प्रोडक्शन होता है वो दिन में होता है, पर पूरे इंडिया की रिक्वायरमेंट नाइट में भी होती है. इसमें जो एनर्जी कॉस्ट विद द बैटरी स्टोरेज ये बहुत कम हो जाएगा, कंज्यूमर को वो वैसा बहुत बेनिफिट मिलेगा. सो प्रोडक्शन और स्टोरेज एक पॉइंट पे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे पॉइंट पे. Okay, and suppose if you take the example of disposal, because disposal of the old batteries is another, it can consider a very big project. So how you are going to manage that disposable as well as the supply chain management in case if the government has approved your supply to like state like Uttar Pradesh. So how you are going to manage that supply chain management for the whole city, like for the whole state like Uttar Pradesh, which you can compare if you see it's much more bigger than the European states. Yes, so इसमें there are few aspects to this. एक तो ये स्टोरेज सिस्टम्स जो आ रहे हैं अभी बिटवीन 12 years to 25 years चल रहे हैं. अभी इंडिया में जो इकोसिस्टम बन रहा है दो तरह से बन रहा है. फॉर सेकेंड लाइफ यूजेज, यानी यही सिस्टम रीवर्क करके छोटे एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल होम इन्वर्टर में यूज़ हो सकते हैं, या आपके डीजी रिप्लेसमेंट में जहाँ छोटे लोअर वोल्टेज में हो सकते हैं. पैरेलली इंडिया में रीसाइक्लिंग का इकोसिस्टम बहुत बड़े तौर से बन रहा है. एंड यहाँ इस शो में कम से कम 20 से 25 रीसाइक्लिंग कंपनीज भी हो रही है. और जैसे ये सेल मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में आएगा, सेल मैन्युफैक्चरर्स भी ये रिसाइकिल बैटरीज हैं. तो ये इकोसिस्टम
रिसाइकलिंग का बन रहा है और इसके साथ जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स है उसको वर्क करना होगा टू ब्रिंग बैक। उसके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेट किया और हमने ऑलरेडी जियोन में कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी इस्टेब्लिश की है। यानी हम ये जानते हैं कि कौन सी सेल कौन से मैन्युफैक्चरिंग से लेंगे, वो कौन से बैटरी या प्रोडक्शन या सिस्टम में लग रही है, वो कौन से कस्टमर को जा रही है, उसकी क्या केमिस्ट्री थी, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स का है। तो ये जब ट्रेसेबिलिटी लगेगी, जब आपको रिसाइकिल करना हो या रीयूज़ करना पड़े, ये कंप्लीट एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी आपको बहुत। So at last, I will like to ask that how you are much more competent than to other players, because so many players are there already in the battery system as well as in the solar power. So why would anyone will like to go with your technology? How you are much more competent and you are going to give much more beneficial to the end users, even to the government. So Polsite Group Cabra extrusion technique has been in the industry for the last 60 years. We have 6 decades of experience in both manufacturing and technology excellence, and we have the confidence of all B2B customers. We have more than 20,000 customers in B2B space, as well as over 90 countries where we are exporting. तो अपने जब ये इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, अपने विद अ वेरी साउंड बेस इन्वेस्ट किया है इन मैन्युफैक्चरिंग। टुडे वी आर सेटिंग अप वर्ल्ड क्लास लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। आज हमारा 3 गीगावाट आवर पे एडिशनल 4 गीगावाट आवर 7 गीगावाट आवर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है। आज जो हमारा हाई वोल्टेज सिस्टम लगा है जस्ट अंडर कमीशनिंग है, प्रॉबेबली इंडिया का बेस्ट लाइन है, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम है। हम लोग का जो फिलॉसफी